Okay, students, I am taking the attendance. Let the students come. सर हाँ बोलो। सर मैं पूछना चाह रहा था कि सर बुक्स कोई आपने 3-4 बुक्स बताई, इसमें से कौन सी बुक्स प्रेफर करूं सर? ये कंफ्यूजन था मुझे, तो आप अगर बुक्स का नेम बता देंगे तो मैं। एक वो है फिट्जराल्ड किंग्सले, दूसरी है पीसी क्रॉस। जी सर, तो ये दोनों बुक्स नहीं है? एक मिनट रुको यार, पहले फाइल डाउनलोड कर लूँ। वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, अटेंडेंस दो तुम लोग। आज लेक्चर है 12, आज तारीख क्या है? अभिजीत सिंह, अभिजीत सिंह, अजय शुक्ला, अलबाब अली, प्रेजेंट सर। अलका यादव प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। अमृतांशु मिश्रा, प्रेजेंट सर। अमृतांशु मिश्रा प्रेजेंट, यस सर। गौतम कुमार, प्रेजेंट सर, गौतम कुमार प्रेजेंट। ज्योति सिंह, प्रेजेंट सर। ऋषिराज जायसवाल, प्रेजेंट सर। शिवा बिंद, प्रेजेंट सर। शिवांग सिंह, सर। सुचिता जैन, प्रेजेंट सर। सौम्य रंजन कुंडू, यस सर। विजय कुमार, यस सर। विजय राजोतिया। प्रेजेंट सर। बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही ज्यादा? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सिटी का लोकेशन है। प्रतीक, प्रेजेंट सर। प्रतीक प्रेजेंट। अभिनीत खरे, प्रेजेंट सर। अभिनीत खरे प्रेजेंट। गरिमा,
Present, sir. निखिल निखिल सुधांशु वर्मा, Present, sir. Sudhanshu Verma, present. पूजा कुमारी, Present, sir. पूजा कुमारी प्रेजेंट। Present, sir. ओके, रवि प्रजापति, प्रेजेंट सर। सूर्यभान कुमार, प्रेजेंट सर। हरीश्वर प्रसाद, प्रेजेंट सर। हरीश्वर प्रताप प्रेजेंट सर। सुधांशु रंजन, Present, sir. उत्कृष्ट गोस्वामी, Present, sir. Present. अनिरुद्ध प्रताप, Present, sir. रजत सिंह, राज कपूर नहीं है। Yes, sir. Raj Kapoor present. प्रेजेंट। सर रजत शुक्ला प्रेजेंट। 5 मिनट लेट हो गया सर, सॉरी। अजय शुक्ला यस सर, अजय। ठीक है। वेट करो थोड़ा सा। अभी नाइट ज्यादा आ रही कि पहले ज्यादा आ रही थी? हेलो, अभी ठीक है सर। ठीक सही है। है। ओके, तो आज जो है आई विल डिस्कस द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी सिस्टम। So we are discussing here the electromechanical energy conversion system. Okay, electromechanical energy conversion system basically contains three parts: one electrical system, a coupling medium or coupling field, and a mechanical system. Can you see the screen? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. And coupling may be the electromagnetic or electrostatic type. Whenever we want to transform the magnetic energy, we use the coils, and whenever we want to transform the capacitively transform the energy from stationary to rotating part, we use the capacitance plates. So the coupling may be both types, electromagnetic or electrostatic. The energy is transferred to and fro to the electrical and mechanical system. Between there, the energy is transformed either from electrical to the mechanical or mechanical to the electrical. Okay, so both type of couplings may also be present at the same time, and there may be a number of electrical and mechanical systems working together at the same time. Okay, so suppose in a common shaft there are a number of couplings and number of flywheels we are connected to the loads. So there are different number of mechanical systems, and suppose a common shaft is operated by
from one supply, there are a number of motors operated. So electrical energy is also provided to the system through different systems. Suppose a DC link and inverter is there, and multiple DC sources are integrated in one, and then we are giving one supply to a motor. So there may be a number of mechanical and number of electrical systems in a between the common coupling. So you can see here a simple diagram which is shown by this block diagram. Electrical system, and that there is a energy transformation, the bidirectional energy conversion. Either electrical energy can be given to the coupling field, or coupling field can provide the energy to the electrical system. And there is also a mutual transfer between the coupling field and mechanical system. The energy can either be transferred to the mechanical system to the coupling field, or coupling field to the mechanical system. So once suppose there is a motor, then you are giving the electrical supply, and there is a mechanical system, then the energy will flow from the electrical system to the coupling field, then to the mechanical system. In case of generator, you are giving the mechanical input, and there is the mechanical input is going to the coupling field, and then the output energy is fed to the electrical system. So this is a simple representation. And also during the analysis, it is shown that the supply frequency is sufficiently low, so that we could assume the electrical system as a lumped parameter system. Okay. And also we have a number of losses in the system, which is electromechanical energy system. There may be the losses such as mechanical heat losses due to the friction, resistive losses in the electrical system, and a part of energy out of losses will be stored in the form of electromagnetic or electrostatic field. So uh, there are three types of energies, which suppose we are giving a electrical energy, then it will be used for transfer to the coupling field, transfer to the losses, and storage in the electromagnetic or electrostatic fields. Okay. Suppose here WE, capital E here represents the total energy supplied by the electrical system. Then this total energy is used for energy transfer to the coupling field by electrical system. Electrical losses such as copper loss, hysteresis loss, and eddy current losses, this comes into the electrical losses. Sometimes hysteresis and eddy current losses are also termed as the coupling field losses. So there may be different assumptions. There may be the losses in the input field, input iron core, that may be hysteresis and eddy current will be calculated as electrical losses in the electrical system. And there may be also the of the fluxes, that may be the losses in the coupling field. So here you have the energy transformed to the coupling field. WEL is the electrical losses. WES is the energy stored in the electromagnetic or electrostatic fields. So total relation is this: W equal to WE plus WEL plus WES. Similarly, suppose Wm is the total mechanical energy which is supplied by the mechanical system. Then this mechanical energy will be used for three types of energies. That is, one, the mechanical, a part of mechanical energy will be transformed to the coupling field by the mechanical system, and a part of mechanical energy will be lost in the form of heat, that is ML, mechanical losses, that may be due to friction or windage. Different types of losses may occur there, heating of the windings.
Similarly, you have the mechanical energy stored in the mechanical couplings, flywheels, inertia. These type of energies are also stored in the system. स्प्रिंग्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे सपोज शाफ्ट में अगर शाफ्ट में भी थोड़ा स्प्रिंग क्वालिटी होता है, तो समटाइम्स इट कम्स प्रोवाइड्स द रिवर्स एनर्जी. एक बार अगर स्प्रिंग खींच गई तो उसमें एनर्जी जो स्टोर होगी वो दोबारा हमें रिसीव भी हो सकती है. तो दैट इज अ एनर्जी स्टोर्ड. फ्लाई व्हील में भी एनर्जी, अगर हम एक बार फ्लाई व्हील रन हो रही है और we stop the system, even after that the flywheel will keep the system running. So these are types of the mechanical system, mechanical energy stored. So the relation is Wm capital M equal to Wm small m, and Wml plus Wms. Okay, is it clear up to here? Clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now come to the next point. Here positive WE means the electrical energy is supplied to the supplied by the electrical system. Okay, positive WE means electrical energy is supplied by the electrical system. If WE is negative, then it can be seen that the energy is provided to the electrical system. Okay. Similarly, negative Wm will mean that mechanical system is fed from a fraction of We. मतलब कि ये एक तरह से मोटर को रिप्रेजेंट करता है. Here the We is positive and Wm is negative. If you have Wm positive and We negative, then that will represent the which machine? Which machine it will represent? Generator. Okay. Generator, sir. Okay. So we have another part of the energy. We have discussed the electrical energy and mechanical energy Wm, electrical energy We. But in between both the energies transformed to each other, we have a coupling field energy. Okay. So total energy transformed to the coupling field is the energy stored in the coupling field and energy lost in the coupling field. ऐसा है कि जैसे कि टोटल हम अगर किसी को देते हैं, हम किसी को 10 रुपए दिए तो उसने 5 रुपए रख लिए, 5 रुपए बर्बाद कर दिए. हमने किए कितना दिया? WF. ठीक है. और उसने जो रख लिए 5 रुपए WF और उसने बर्बाद कर दिए जो, तो WF total energy which is supplied by either electrical or mechanical or both the systems. So WF is total energy available from the electrical and mechanical system, and W small f, this is the energy stored in the coupling field. जो भी energy मिली बाहर से वो उसको store करेगा, कुछ losses हो जाएगा, then WFL. okay, lost in the coupling field. जैसे हिस्ट्री लॉसेज होता है, ESR इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होता है. ओके. So suppose WFL is comprised of all these three components. एडी करंट लॉसेज, मैग्नेटिक्स है तो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होगा, और डाइलेक्ट्रिक लॉस हो सकता है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है तो कपलिंग सिस्टम कई प्रकार हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिस पार्ट इज देयर, and for electrostatic this part is okay. So we have WF here. Okay. So total energy WF is equal to energy provided
by the total energy transformed to the coupling field is equal to the total electrical energy transferred by the electrical system and mechanical energy transferred by the mechanical system. ओके ये देखो, ये स्मॉल ई और स्मॉल एम है। ये स्मॉल ई वाला जो पार्ट है, दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर टू द कपलिंग फील्ड। तो ये मैकेनिकल के द्वारा है और ये इलेक्ट्रिकल के द्वारा है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी टोटल ट्रांसफॉर्म्ड होगी दोनों सिस्टम के द्वारा, दैट विल बी आइदर स्टोर्ड इन द कपलिंग फील्ड और लॉस्ट इन द कपलिंग फील्ड। तो हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि WF इक्वल टू WFL प्लस WFL, ओके, WF प्लस WFL। तो टोटल जो कपलिंग फील्ड का एनर्जी है वो दैट इज स्टोर्ड एंड stored energy and the energy lost in the coupling field, and this is WE and this is WM। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमारा होता है W कैपिटल E इक्वल टू WE प्लस WEL प्लस WES, तो वहीं से हम इसको निकाले हैं। ओके, लॉसेज और स्टोरेज जितना होगा, टोटल एनर्जी सप्लाइड में से लॉसेज और स्टोरेज निकाल देंगे, तो वो कपलिंग फील्ड को जितनी ट्रांसफर होती वो एनर्जी होगी। और यहाँ पे ऐसे ही WM भी निकालेंगे। ओके, तो एक्चुअली अगर कपलिंग फील्ड की लॉसेस को अगर हम 0 मान लेते हैं तो उस कंडीशन पे हमारा ये बनता है, आई वी अज्यूम दैट देयर इज अ नेग्लिजिबल कपलिंग फील्ड लॉसेस, देन this is the equation. Now if we represent 0 इक्वल टू, ये पूरा हम इधर जो है इसको हम घटा लेते हैं, इधर ले जाके माइनस कर लेते हैं, इधर भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो WE माइनस WEL माइनस WES प्लस WM कैपिटल M माइनस WML स्मॉल है M माइनस WMS माइनस WF माइनस WFL। तो ये जो पूरा इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 0। ये एनर्जी बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, जो भी टोटल एनर्जी हमको सिस्टम से मिलती है, जो सिस्टम से जो टोटल एनर्जी लॉस्ट होती है या आउटपुट होती है, टोटल सम 0 होता है, ठीक है। मतलब एनर्जी कन्वर्जन जो उसका प्रिंसिपल है एनर्जी कंजर्वेशन का, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा ये WE स्टार्ट होता है, ये वाला, फिर इसमें WEL और WES सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ WES और WEL, सब्ट्रैक्ट होने के बाद WE बनता है। ओके, WE, अब इसमें इधर देखो WM, ये वाला पोर्शन WM माइनस WMS, ओके, माइनस WMS ML माइनस MS, तो यहाँ पे हो गया, ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब ये इतना यहाँ कंपोनेंट दोनों आए, WE और ये वाला WM, उसमें माइनस WF माइनस WFL करेंगे तो टोटल यहाँ पे 0 है। ओके ओके, समझ में आ गई चीज। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी WF और WFL है उसमें जाती है, जितनी एनर्जी WF और WFL में कपलिंग फील्ड में स्टोर्ड और कपलिंग फील्ड में लॉसेज, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द मैकेनिकल सिस्टम ट्रांसफर टू द कपलिंग फील्ड एंड energy available from the electrical system which is transferred to the coupling field। तो जितनी एनर्जी अवेलेबल होती WE plus WM goes to the coupling field, okay, storage and losses। यहाँ क्लियर है?
इज इट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे माइनस का मतलब ये होता है कि एनर्जी मैकेनिकल कपलिंग फील्ड में एनर्जी बाहर से आके उसमें आ रही है, कपलिंग फील्ड एनर्जी नहीं दे रहा है, कपलिंग फील्ड में एनर्जी जा रही है। क्यों? माइनस है, माइनस WF और माइनस WFL, मतलब कि बाहर से एनर्जी आके कपलिंग फील्ड में स्टोर हो रही है। और यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या है कि बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और इसमें ही बाहर से मैकेनिकल एनर्जी आ रही है। ओके, तो जो भी प्लस है मतलब वो, हाँ सर माइनस का मतलब डिसिपेट हो रही होगी ना, वहाँ पे जो लॉस हो रहा है। हाँ, तो डिसिपेट का मतलब जो कपलिंग फील्ड है उसमें स्टोर होगा और एक लॉस होगा। कपलिंग फील्ड में स्टोरेज और कपलिंग फील्ड में लॉसेज। कपलिंग फील्ड में स्टोरेज कैसे होता है कि इन द टर्म्स ऑफ फ्लक्स, ठीक है, जो एयर गैप से फ्लक्स स्टेटर से रोटर में जा रहा है, तो एक फ्लक्स के टर्म्स में एस्टेब्लिश होगा, वो फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो एक तरह से वो फ्लक्स स्टोरेज टाइप का ही चीज कहलाता है। और लॉसेज क्या हो गई? फ्रिंजिंग हो गया, उसके कारण जो डिफॉर्मेशन हुए, और एडी करंट वगैरह भी लॉसेज हो सकता है। इसे कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक होता है इंडक्टिव पावर ट्रांसफर, एक होता है कैपेसिटिव पावर ट्रांसफर। तो कैपेसिटिव है तो उसमें ESR और डाइलेक्ट्रिक लॉसेज वगैरह के कारण उसमें हीट लॉस होगा। तो देयर आर स्टोर्ड पार्ट एंड लॉसेज पार्ट इन द कपलिंग फील्ड। समझ में आ गया? तो कपलिंग फील्ड एक तरह से एयर गैप कपलिंग हो गई, ठीक है। कोई भी दो सिस्टम है तो उसमें एयर गैप ही तो होगा बीच में कपलिंग, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया ना इतना कैसे सिस्टम डेवलप हुआ है। तो जो भी हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज transformed to the coupling field. Part of this electrical energy is transformed to the coupling field, except the losses and storage. ओके, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में स्टोरेज होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉसेज, यहाँ मैकेनिकल में भी स्टोरेज होगा, मैकेनिकल में भी लॉसेज। पार्ट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द कपलिंग फील्ड, जहाँ की जो कपलिंग फील्ड को जो भी एनर्जी दी जाएगी उसमें कुछ स्टोर हो जाएगी कपलिंग फील्ड में और कुछ लॉस हो जाएगी। ओके, तो next you see here a relay electromechanical system has been shown. Okay, so here you can see a voltage is supplied to the coil. Simple relay, you know there is a coil which magnetizes the U core of the relay, and there is a plunger which moves forward and reverse. Okay, so initially if there is no any external force here, okay, there is no any external force and we are not applying any electrical field, then this will be initially the plunger will be at this position. Okay, clear? And when we apply the a gradually increasing voltage, there will be a gradually increasing flux. Depending on that, a force will be applied to this side. Okay, so the movement will be there, which will be changed from x to x0 to x. Okay, so direction of movement is in this direction. Okay, x2 minus x1, that is x minus x0. तो x छोटा है और x0 बड़ा है, तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, निगेटिव डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डेल x सपोज, ठीक है। तो एक तरह से ये अपोजिट साइड मूव हो रहा है। ओके, नाउ यू सी दैट F इज द एक्सटर्नल मैकेनिकल force. If we are not applying any external mechanical force, then F equal to 0. F is the electrical force, electrical or electrostatic force. If we are not applying this electrostatic or electromagnetic force in this plunger, okay, except this coil during energization, तो उस टाइम पे क्या होगा? सिस्टम इज एट x0 डिस्प्लेसमेंट। ओके,
Now you come to this point. V equal to Ri plus L di upon dt plus EF, इतना तो पता है ना। तो कोई भी, जैसे हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, करंट यहाँ से जा रही है, ओके, करंट हमारी इधर से ऐसे फ्लो हो रही है। तो जो भी लॉसेज होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, फिर ये रजिस्टर में लॉसेज ऐसे होगा, ओके। और ये प्लस और माइनस, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनेगा, ई एफ, ओके। तो ये जो EF है, EF इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कपलिंग फील्ड, ठीक है। दिस इज आल्सो इंड्यूस्ड वोल्टेज बट एक्चुअली इट इज फेसिंग द करंट अपोजिट। जैसे कि ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप की डायरेक्शन में है, इसका जो पोलैरिटी है वो ड्रॉप की डायरेक्शन में है। तो इसको हम ड्रॉप इन द कपलिंग फील्ड भी बोल सकते हैं, ओके। सो EF इज द ड्रॉप इन द कपलिंग फील्ड, इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। जब भी हम चार्ज करेंगे तो जब भी करंट फ्लो करेंगे तो इट विल ट्राई टू अपोज द फ्लक्स व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड एंड ड्यू टू द इट्स अपोजिंग it will try to set up the current opposite to the actual current, ठीक है। ये एक्चुअल करंट के अपोजिट में करंट सेटअप करेगा, तो एक तरह से that will be assumed that the voltage is appearing across both the terminals। ऐसे ही एक तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का हो गया। अब मैकेनिकल सर्किट में क्या होता है, सपोज कि यू हैव F प्लस FE total external force if you are applying, okay, then that external force will be used for inertia, that is mass into acceleration। जो भी फोर्स है तो किस में खर्च हो जाएगा, एक तो स्प्रिंग में खर्च हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक रिले में एक स्प्रिंग लगी होती है टू रिवर्ट बैक अपनी पोजीशन पे उसको लाने के लिए। अगर हम देखो, अगर हम प्लंजर को मूव करने के लिए फोर्स इधर लगाते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है, इधर को फोर्स लगाती है। ऐसे ही विस्कस फ्रिक्शन इधर को फोर्स लगाता है, और जो मास है वो भी इधर को फोर्स लगाता है, क्लियर। अगर हम नॉर्मल पोजीशन से इधर को फोर्स लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में जो है इसकी स्थिति, अगर हम इधर को फोर्स लगाते हैं तो हमारा स्प्रिंग जो है वो इधर को फोर्स लगाता है, ठीक है। विस्कस फ्रिक्शन इधर को फोर्स लगाएगा, और मास भी इनर्शिया के कारण वहीं पर रहने के मतलब उधर को ही फोर्स लगाता है। तो जो भी फोर्स है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, दैट इज बैलेंस्ड बाय थ्री फोर्सेस, द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, फोर्स ड्यू टू विस्कस फ्रिक्शन एंड फोर्स ड्यू टू द मास एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पे F प्लस एफ इक्वल टू हो गया मास में, और एक विस्कस फ्रिक्शन में, और एक हो गया स्प्रिंग में, ठीक है। तीन पार्ट में वो खर्च होता है, टोटल जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, क्लियर। यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो F इक्वल टू जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है वो क्या होगा, एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स, अप्लाइड मैकेनिकल फोर्स इक्वल टू md स्क्वायर एक्स अपन dt स्क्वायर डी डी एक्स। अब इसको b भी कभी कभी कहीं पे b भी लिखा रहता है, jx प्लस बी डी एक्स प्लस के, ठीक है। कहीं पे f भी लिखा रहता है, एम डी स्क्वायर एक्स एम एफ एस एफ डी एक्स प्लस के, ऐसा भी लिखा रहता है। तो दिस इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द विस्कस फ्रिक्शन फोर्स। जितनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे जितना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, इनर्शिया उतना ही अपोजिट फोर्स लगाएगा। एक्सेलरोमीटर में यही चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे सीज्मिक उसमें जो भूकंप मेजर करते हैं उसमें इसी फार्मूले का यूज करते हैं।
ऐसे ही है, स्प्रिंग में जितना ही डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ाती जाएगी स्प्रिंग अपना वापस लेने के लिए। ठीक है, हम जितना डिस्प्लेस करते जाएंगे उसको फैलाते जाएंगे उतना ही स्प्रिंग भी फोर्स लगाती जाएगी। तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फार्मूला बना। ओके, नाउ यू कम टू दिस पॉइंट। सर हाँ सर ये Fe क्या है एक बार बता दीजिए। तो kx माइनस एक्स इलेक्ट्रिकल नॉट। फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसा होता है ना कि हम एक इलेक्ट्रिकल फोर्स सप्लाई करते हैं। सपोज कि अगर एक कॉइल है, मतलब कॉइल में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स है तो कॉइल का जो गैप ऑफ द कंडक्टर है वो कम होगा, क्योंकि दैट विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, कंडक्टर्स विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि फ्लक्स की डायरेक्शन एक ही है ना। तो करंट की डायरेक्शन अगर एक ही होगी तो कंडक्टर्स क्या होंगे, आपस में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि जब दो प्लेट्स होती हैं तो हमेशा क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के डिस्टेंस। ठीक है, कोई भी फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट विल ट्राई टू रिड्यूस द डिस्टेंस। ठीक है, तो और एक होता है एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, जो भी हमने जैसे कि अगर हम एक फ्लक्स के थ्रू इस प्लंजर पे हम जो फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, कॉइल से एक फोर्स दे रहे हैं फ्लक्स को, फ्लक्स स्टेब्लिश करके फोर्स दे रहे हैं प्लंजर को। तो अगर हम सपोज कि हाथ से भी हम फोर्स दे रहे हैं, साथ में एक इस पे इसे प्लंजर निकाला हुआ है, हम हाथ से भी खींचे हैं और साथ में हम इस वोल्टेज अप्लाई करके रिले से भी खींच रहे हैं फ्लक्स एसएलडी, तो दोनों फोर्स अप्लाई हो जाएगा एक तरह से, F प्लस एफ ई। ठीक है, अगर हम केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एफ ई हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर यूजिंग व्हाट इज हायर। तो यहाँ पे एक तरह से F प्लस एफ इक्वल टू टोटल फोर्स अप्लाइड इनटू द सिस्टम एक्सटर्नली इज इक्वल टू द फोर्स स्पेंट ऑन the individual components of mechanical system, that is into acceleration of a mass into the viscous friction and in the spring। तीन पार्ट में वो जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो स्पेंड होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम हियर if we multiply this by I then vi हो जाएगा, तो r आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एल आई डी आई अपन डी टी हो जाएगा, ई एफ आई हो जाएगा। ओके, तो टोटल जो एनर्जी सप्लाइड, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दैट इज इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट and dt integral vi dt is total energy supplied by the electrical system। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट जो है ये I है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये करंट I और ये V, तो टोटल इनपुट पावर कितनी होगी VI, और इनपुट एनर्जी जो होगी वो टाइम के साथ में उसका इंटीग्रल, जितनी भी एनर्जी लेगा वो इंटीग्रल कर देंगे टाइम के साथ में, तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल वी आई डी टी। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम। अब उसमें क्या क्या लॉस हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर डी टी कर लिया हमने एल आई डी आई प्लस ई एफ आई डी टी। तो यहाँ पे द एनर्जी ट्रांसफर टू द कपलिंग फील्ड ये हो गया। ओके, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो इंडक्टर में स्टोर होता है ये एनर्जी, होता है एल आई स्क्वायर 1/2 एल आई स्क्वायर होता है ना,
इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आई स्क्वायर बाई 2 होता है 1/2 एल आई स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर होती है। ऐसे ही एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द इंडक्टर, रेजिस्टेंस में जो लॉस होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल लॉसेज हो गया, ये स्टोर्ड हो गया, और ये कपलिंग फील्ड लॉस हो गया, कपलिंग फील्ड में ट्रांसफर्ड हो गया। ये क्लियर हो गया। ऐसे ही हम मैकेनिकल सिस्टम में देखें तो WM इक्वल टू एफ डी एक्स, टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। कितना डिस्प्लेसमेंट हमने किया प्लंजर का, जितना डिस्प्लेसमेंट किया और जितना हमने फोर्स लगाया यूजिंग द कॉइल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो भी हम टोटल फोर्स अप्लाई करते हैं प्लंजर पे, ठीक है। तो अगर F को हम यहाँ पे लेते हैं हम d स्क्वायर अपन dt स्क्वायर, तो F का इंटीग्रल dx के साथ में करेंगे तो md स्क्वायर अपन dt स्क्वायर का एक इंटीग्रल dx के साथ में, फिर d डॉट dx अपन dt का इंटीग्रल dx के साथ में, प्लस के x माइनस एक्स जीरो का इंटीग्रल dx के साथ में, माइनस एफ ई dx। ठीक है, ये जो फार्मूला हमने लिया है यहीं पे सिंपली इसने एफ डी इंटीग्रल एफ डी एक्स किया। क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वही रहेगा डी स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस चीज को हमने यहाँ पे किया डी टी इंटू डी टी। तो डी टी इंटू डी टी करेंगे तो कट तो जाएगा, वैसे वो हो जाएगा, लेकिन अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा। तो डी एक्स अपन डी टी द होल स्क्वायर इंटू डी टी, हमेशा इंटीग्रल टाइम के साथ में यहाँ करेंगे तो यहाँ डी टी की टर्म्स में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स का टर्म है, फिर यहाँ पे हम क्या लिए, डी एक्स का ही टर्म है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द मास stored in the mass and एक्सेलरेशन होता है, जैसे इनर्शिया होता है, मास होता है, उसमें जो भी है स्टोर हो जाता है। अगर हम एक स्प्रिंग पे मतलब कोई है मास ऊपर उठा कर रख देते हैं तो गिरेगा तो चोट पहुंचाएगा किसी को, तो एक एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टेब्लिश हो जाती है। ऐसे ही थर्ड टर्म, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग को फैला के और छोड़ के रख दें तो कोई भी इसको ट्रिगर करेगा तो उसमें फोर्स जनरेट होगा। तो दिस फर्स्ट एंड थर्ड टर्म रिप्रेजेंट द स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। सेकेंड टर्म जो है वो विस्कस फ्रिक्शन लॉस होता है। ओके, विस्कस फ्रिक्शन लॉस, क्लियर। और एक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज माइनस एफ ई डी एक्स। क्लियर। तो माइनस एफ ई डी एक्स मतलब प्लंजर को शिफ्ट करने में जो एनर्जी वेस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी विशिष्ट ट्रांसफॉर्म टू द मतलब प्लंजर को मैकेनिकल एनर्जी जो मिलती है, क्योंकि ये निगेटिव है, प्लंजर को मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन मैकेनिकल मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि टोटल कपलिंग फील्ड एनर्जी, अगर हम लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दें तो टोटल कपलिंग फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एम। यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। कपलिंग फील्ड में जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली नेगेटिव है, मतलब एनर्जी जा रही उधर को। ठीक है, तो जो स्टोर्ड है कपलिंग फील्ड में वो कितनी बचेगी, जितनी गई बाहर मैकेनिकल सिस्टम में और जितनी मैकेनिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर हुई, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कितनी आई ई एफ आई डी टी ये, और मैकेनिकल सिस्टम को गई कितनी ये,
तो स्टोर्ड कितनी हुई कपलिंग फील्ड में, द डिफरेंस ऑफ बोथ। ओके, ये तो सिंपल इक्वेशन है कि जब हम WFL को 0 मान लेते हैं, WFL लॉसेज कपलिंग लॉसेज 0 मान लेते हैं कपलिंग फील्ड लॉसेज, तो उस कंडीशन पे WF इक्वल टू WE प्लस WM। क्लियर? अगर हम सिंपली अगर इसी फार्मूले को डेवलप करें J नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और K नंबर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स, देन ये क्या होगा, ये WFJK। ओके, और सिग्मा J तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी एनर्जीज हम जो जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उससे कपलिंग फील्ड में जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, ओके, कपलिंग फील्ड को जितनी एनर्जी जाएगी, ए पार्ट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ पार्ट सभी सिस्टम्स का जाएगा कपलिंग फील्ड में। ओके, तो टोटल सम उसका ले लेंगे। और अगर के नंबर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम है तो ए पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी बाय द मैकेनिकल सिस्टम, हर एक सिस्टम से ए पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द कपलिंग फील्ड। तो के अगर मैकेनिकल सिस्टम है तो ये टोटल कपलिंग फील्ड को जो ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी है वो सम ले लेंगे, उसका टोटल सम। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? तो अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो कितनी है, ये आती है जेथ अगर एनर्जी की बात करें हम तो EFJ/IJ/dt होता है। तो अगर हम पूरा सम लेते हैं तो क्या आएगा, J इक्वल टू 1 to J EFJ/IJ/dt, ये है। ऐसे सिमिलरली ये कौन सा ये वाला टर्म है WMK। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए, FE/dx। ओके, the electrical or electromechanical or electrostatic, सॉरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो उसके कारण जो फोर्स बनती है और dx के, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा है, जो फ्लक्स के कारण बन रहा है। ठीक है, फ्लक्स के कारण ही तो प्लंजर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the total sum of all the systems is minus of integral of total sum of FE के dx के। तो अगर उसको हम सिंपली टोटल एनर्जी लें अगर इन टर्म्स ऑफ ये WEJ का वैल्यू हम रखें यहाँ पे, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, EFJ/IJ और यहाँ पे FE/dx के। ठीक है, और इंटीग्रल, क्योंकि इसका वैल्यू होता है इंटीग्रल इतना। ठीक है, तो ये आ जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द WE1, WE2, WEJ, ओके, WM1 which is transfer to the coupling field। अगर यहाँ से अब ये पहला क्या आया, माइनस इंटीग्रल ऑफ FE1 dx1। ओके, ये पहला आया। ऐसे ही सिंपली दूसरा क्या आएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ FE2 dx2। ओके, और यहाँ पे तीसरा क्या हुआ, माइनस ऑफ FE यहाँ पे एकदम ये होता है इंटीग्रल ऑफ E1 I1 dt। ठीक
ठीक है। यहाँ पे E2 इंटीग्रल ऑफ E2 I2 dt हो गया। तो ऐसे ही टोटल जितनी एनर्जी यहाँ से इधर जा रही है, अगर ये पॉजिटिव होता तो इधर को जा रही होती, लेकिन कपलिंग फील्ड में एक्चुअली ये निगेटिव है, इसलिए इधर जा रही इधर से और यहाँ पे आ रही है। समझ गए? अगर ये पॉजिटिव होता तो टोटल एनर्जी इधर को जा रही, अगर निगेटिव होता है तो इसका मतलब समझ गए? तो दिस इज फॉर टुडे, दिस इज how we represent an electromechanical system. Any confusion on that? इस वाली इस पेज में कोई कंफ्यूजन? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत समझ में आ गया है? यस सर, समझ में आ गया है। नहीं आया होगा तो यहाँ मेरी अटेंडेंस हाँ, किसकी अटेंडेंस? सर रह गई, मैं 2 मिनट लेट हो गया सर। क्या नाम है? निखिल प्रभात सर। हेलो सर। सर एक मिनट सर, लास्ट पेज खोलिए एक बार। निखिल सर प्रभात अभिजीत सर। सिंह अटेंडेंस रह गई। हेलो सर। सर ये जो एरोज हैं वो सर दूसरी डायरेक्शन में नहीं होंगे? मैकेनिकल वाले जो राइट साइड वाले एरोज हैं। नहीं, ऐसा है ना कि ये WM1 हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके रखे हैं कि WM रिप्रेजेंट्स द एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैकेनिकल सिस्टम टू कपलिंग फील्ड। ओके, ऐसा हम एक स्टैंडर्ड मान के रखे हैं कि WM प्लस WM1 कपलिंग फील्ड को एनर्जी जा रही है। ठीक है, अब अगर जा रही तो पॉजिटिव है तो जा रही है कपलिंग फील्ड को, तो ये कितनी, अगर यहाँ पे अगर FEX होता, ये पॉजिटिव है, ठीक है, फोर्स भी पॉजिटिव है और ये इंटीग्रल dx ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कपलिंग फील्ड में जा रहा, बट यहाँ पे निगेटिव हो गया। WM जो कपलिंग हम एज्यूम मान के चलते हैं कि इसकी रेफरेंस डायरेक्शन हम एज्यूम करते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि अगर हम एक क्लोज लूप है R और L जो भी है, उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे मान के चलते हैं कि पॉजिटिव है हमारी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आती है -5 एम्पीयर। ठीक है, समझ गए? -5 एम्पीयर का मतलब क्या होता है कि हम मान के चले कि WM पॉजिटिव है, ऐसा पॉजिटिव ऐसा है, मतलब जो पॉजिटिव ऐसा है, लेकिन इसकी वैल्यू आ रही है निगेटिव -5 एम्पीयर। इसका मतलब करंट ऐसा जा रहा है, यानी WM ऐसा जा रहा, मतलब कपलिंग फील्ड से मैकेनिकल को ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो यस सर। क्योंकि देयर इज ए नेग्लिजिबल लॉस इन द सिस्टम एंड देयर इज वेरी स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड इन द कपलिंग फील्ड। अगर एज्यूम करते हैं कपलिंग फील्ड में एनर्जी बहुत कम स्टोर है, तो जो टोटल एनर्जी कपलिंग फील्ड में आती है वो फोर्स के टर्म्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब हमने वोल्टेज दिया, करंट फ्लो हुई, कॉइल में फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स ने एस्टेब्लिश किया एक फोर्स। ठीक है, तो जो भी फोर्स उसमें बना है ना, वो बस कितना, जो स्प्रिंग और ये सब उसके एक्सेलरेशन को बैलेंस करते हुए कुछ फोर्स, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हमारी मैकेनिकल जो पोर्शन है, मैकेनिकल सिस्टम को एनर्जी बाहर से आ रही है। ठीक है, प्लंजर को मूव कर रहा है, ना कि प्लंजर मूव होकर सिस्टम में पावर भर रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ऐसा तो नहीं है कि प्लंजर मूव कर रहा तो पावर भर रही है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ऐसा नहीं है।
यहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हमने एनर्जी दिया, फ्लक्स बनी और प्लंजर मूव हुआ, थोड़ा ओवरकम किया उसने स्प्रिंग और मास और विस्कस फ्रिक्शन को, फिर एक रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मूवमेंट हुआ प्लंजर का। तो एक तरह से हम ये मानते हैं कि जो एनर्जी हमने दिया उस पार्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ प्लंजर। ठीक है, तो हमने रेफरेंस डायरेक्शन मान के चला कि Wm1 पॉजिटिव, मतलब कि दैट इज गोइंग टू द कपलिंग फील्ड, Wm2 हो गया। अब ये -5 एम्पियर आई की डायरेक्शन में ऐसे लेके 5 एम्पियर, इसका मतलब कि वो 5 एम्पियर ऐसे जा रही है, 5 एम्पियर ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब हम ये मानेंगे कि FETX इतना इधर को जा रहा है, समझ गए? इतनी एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी मैग्नीट्यूड इधर को जा रहा है। सर सर पूछ रहे थे कि अगर मान लीजिए सोर्स है और सोर्स अगर एनर्जी दे रही है तो पॉजिटिव है और ले रही है तो नेगेटिव है, तो सर क्या सेम डिफरेंस लोड के लिए भी होता है? सोर्स जो सोर्स है पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि एनर्जी देना, ठीक है, और जिसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल पॉजिटिव एनर्जी का मतलब होता है कि वो देगा एनर्जी। ठीक है, सिस्टम में पॉजिटिव जैसे टॉर्क है, हम टॉर्क मतलब पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम में, तो इंड्यूस हो रहा है EMF। ओके, तो वहाँ पे जो भी हम सप्लाई दे रहे हैं दैट इज पॉजिटिव। अगर हमें मैकेनिकल में एनर्जी मिल रही है तो हम देखते हो ना कि TE माइनस TL लिखते हैं। TE मतलब इलेक्ट्रिक, TE माइनस TL इक्वल टू JD स्क्वायर थीटा अपॉन DT स्क्वायर प्लस FD थीटा अपॉन DT प्लस K थीटा होता है, जानते हो ना? तो TE पॉजिटिव लिए हमने, TL निगेटिव, यहाँ टॉर्क निगेटिव लिया है, यानी एक तरह से फोर्स और जो भी एनर्जी है, पावर है, तो यहाँ पावर निगेटिव है क्योंकि हमारा एनर्जी उधर को फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में फ्लो हो रही है। मैकेनिकल में हम एनर्जी देते तो TL माइनस TE होता कि नहीं? यस सर। तो जो पॉजिटिव है उसमें एक तरह से वो एनर्जी दे रहा है दूसरे को, हम धनी है इसका मतलब हम दूसरे को देते हैं, और जो ऋणी है मतलब वो लेता है दूसरे से। और कोई कंफ्यूजन? सर अटेंडेंस देख लीजिए सर एक बार। अटेंडेंस छूट गई सर। निखिल सर अभिजीत, ये अभिजीत भैया आप कब आए हैं? सर 9/9 पे। अच्छा, चलो ठीक है। सर बुक के बारे में कौन सी? अल्बावली तो जितना भी इसमें हमने चिन्ह बनाए थे सब हम उसको कैंसिल कर रहे हैं कि हम हमारी जो PPT है एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हो बुक्स के लिए? बुक के लिए तो ऐसा है ना कि एक काम करते हैं, अभी तक जो हम पढ़ाए हैं उसकी PPT दे देते हैं, पढ़ लो। और ये PC क्रॉस की बुक है, फिट्जराल्ड किंग्सले की फाइल्स में तो मैं डाला हूँ, शायद चेक किए हो। सर आपने दो तीन बुक्स डाली थी सर, उसमें से कौन सी प्रेफर करनी है कि दोनों प्रेफर करनी है? दोनों यूज होंगी भाई, जो भी फाइल्स में होंगी तो सब काम की बुक होंगी ना। एक मिनट को वेट करो, फाइल्स में देखें कौन कौन सी बुक हमने डाला है। मुझे तो सिर्फ फिट्जराल्ड के दिख रहा है। क्लास मटेरियल के फोल्डर में है सर। एक ये है और दूसरी हम दे देते हैं। यस सर।
देखो ऐसे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ बुक एंड वी हैव टू कंसीडर द सब्जेक्ट टॉपिक्स। तो कोई तो एक रेफरेंस बुक लेनी ही पड़ेगी सर इसी क्रॉस से। एक्चुअली क्या कि जब मेरा पीएचडी कोर्स वर्क था तो सिंह सर ने हम लोगों को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पढ़ाया था, तो उसमें पीसी क्रॉस ही रेफर किया था सर ने मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स के लिए हम लोगों के लिए। तो फिट्जरल्ड किंग्सले भी सर ने रेफर किया था, इसीलिए हम भी रेफर कर रहे हैं। बोलो, कुछ बोल रहे थे? यस सर, वो बोले सर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन मैटलैब स्क्रिप्ट में करना होता मशीन का, तो सर उसके लिए भी कुछ अगर रेफर कर देते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं वीकेंड में सर आराम से। एक बुक है, देखना पड़ेगा उसमें कितना है क्या है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। पहले स्टॉप